تم کیا سوچ رہی ہو؟ ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا۔ کیا تم تھوڑی سی برانڈی لینا پسند کرو گی؟ نہیں شکریہ، میں شراب نہیں پیتی۔ تم نسلاً سوئس ہو؟ جی ہاں، لیکن تمہارے دوسرے ساتھی تو یہیں کے ہیں۔ کیا تم اس ملک کی وفادار ہو؟ ہاں، میری ماں یہیں کی تھی۔ میں خود کو یہیں کی شہری تصور کرتی ہوں۔ مجھے اس سرزمین سے پیار ہے۔ تم بکواس کر رہی ہو۔ ڈاکٹر اسٹیپلر کا اچانک سے موڈ بدل گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے شعلے برسانے لگی تھیں۔ تم کسی دشمن ملک کی جاسوسا ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا سرغنہ کون ہے؟ جولیا کانپ گئی۔ دفتن دروازے کی طرف سے آواز آئی، ڈاکٹر، پولیس۔ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر غرا کے دروازے کی طرف مڑا۔ دروازے میں جولیا کو وہی آدمی نظر آیا جسے غار میں اس کی گفتگو ہوئی تھی اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ رائفل رکھ دے۔ پولیس، تم کیا بک رہے ہو؟ ہاں ڈاکٹر، میرے اور آپ کے علاوہ سب گرفتار ہو چکے ہیں۔ کیا تم نشے میں ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے نشے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ڈاکٹر۔ کل رات بھی تم نے شراب پی کے کافی ادھم مچائی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر، اس وقت میں نشے میں نہیں ہوں۔ اگر ہوتا بھی تو نشہ ہرن ہو جاتا۔ آپ خود دیکھ لیے، سارے ساتھی اس کمرے میں بندھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم جاتے ہو یا میں تمہیں ہوش میں لاؤں؟ ڈاکٹر دانت پیس کے اسے مکہ دکھاتا ہوا بولا، آپ کی مرضی۔ اس نے لاپرواہی کے ظاہر میں اپنے چانوں کو جنبش دی۔ میں نے تو آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر پھر جولیا کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر، اگر تم محب وطن ہو تو یہاں پولیس کا کیا کام ہے، بتائے؟ جولیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے وہ بکواس کر رہا ہے، نشے میں ہے۔ اچانک جولیا کی نظر پھر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہی آدمی دوبارہ اندر آ رہا تھا، لیکن اس بار اس نے ایک آدمی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا رکھا تھا جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے فرش پہ ڈالتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے ڈاکٹر، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ کیا؟ ارے! ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، اور دوسرے وہاں اس کمرے میں ہیں، اس نے کہا۔ ڈاکٹر بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر جھپٹا اور وہ آدمی جولیا کو آنکھ مار کے مسکرانے لگا۔ گھنی مونچھوں سے ہونٹ تو ظاہر نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں مسکراتی ہوئی سے معلوم ہو رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ڈاکٹر اسٹیپلر کی گھرراہٹ سنی۔ تم نارنگ نہیں ہو، تم ہرگز نارنگ نہیں ہو، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر اسٹیپلر اس آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ تم دھوکہ کھا چکے ہو اسٹیپلر، تم ختم ہو گئے۔ اس آدمی نے اپنی گھنی مونچھوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی جولیا کے حلق سے ایک تحیر آمیز چیخ نکلی۔ اس کے سامنے وہی لفنگا عمران کھڑا تھا جس نے آج اسے ایک ریسٹورنٹ میں مروب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر، خود کو میرے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ شاید مجھے تمہاری لاش یہاں سے لے جانی پڑے۔ عمران نے کہا، تم کون ہو؟ علی عمران، MSc PhD، گرداسپور ریاست ڈھم کا شہزادہ۔ انگریزی میں لوگ مجھے ڈیوک آف ڈھم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیپلر نے عمران پہ چھلانگ لگائی اور عمران بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ڈاکٹر زمین پہ اوندھا گر پڑا، لیکن پھر بڑی تیزی سے اٹھ کے عمران پہ پلٹ پڑا۔ ہائے ہائے، ارے ارے ارے! عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، ہاتھا بھائی شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ ڈاکٹر، تم تو بہت اونچے آدمی ہو۔ اس بار ڈاکٹر اسٹیپلر کا گھوسا دیوار پہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے، کیونکہ اس نے اپنی ہی پوری قوت سے حملہ کیا تھا اور دیوار پہ گھوسا پڑتے ہی اس کے منہ سے کرہا بھی نکلی تھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، عمران نے ایک طرف ہٹ کر درویشانہ انداز میں کہا، اور جولیا ہنس پڑی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر ذرا سی دیر میں ہی دیوار سے لگ کے ہانپنے لگا تھا۔ اگر کہو تو ایک پیش کروں کیا؟ عمران نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تھکن کا بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر اسٹیپلر نے اسے ایک گندی سی گالی دی۔ توبہ توبہ توبہ! عمران منہ پیٹتا ہوا بولا، یہ ایک عظیم سائنسداں بول رہا ہے۔ شٹ اپ! ڈاکٹر اسٹیپلر حلق کے بل چیخا اور پھر عمران پہ آ گرا۔ مگر عمران کہاں؟ اس نے تو سامنے والی دیوار پہ ٹکر ماری تھی اور عمران دور کھڑا سادھوؤں کے سے انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہہ رہا تھا، کنفیوشیس نے کہا تھا، غصے کی آگ عقل کا ایندھن بن جاتی ہے۔ اگر کنفیوشیس کی شادی ہو گئی ہوتی تو پھر وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں ڈاکٹر، کیا خیال ہے؟ مگر ڈاکٹر کو ہوش کہاں تھا؟ آخری ٹکر نے اس کے سر میں شگاف ڈال دیا تھا۔ جولیا قریبی کھڑی اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر رہی تھی۔
थोड़ी देर बाद इमरान 8 बेहोश आदमियों को स्टेशन वैगन में ठूस रहा था। जूलिया उसके पास खामोश खड़ी थी। तुम यहाँ अगली सीट पे मेरा इंतज़ार करो, इमरान ने कहा। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी, ओके। इमरान फिर इमारत में वापस आया जहाँ अब उल्लू बोल रहे थे। यहाँ पे उसने एक ट्रांसमीटर सेट निकाला और उस पर झुकता हुआ बोला, रूशी रूशी। रिसीविंग सेट से आवाज़ आई, कौन? इमरान, तुम कहाँ हो? वहीं जहाँ से कुछ देर पहले बोला था। देखो, 6380 पे फ़ोन करके सार्जेंट नाशाद को बोलो कि तुम अपने 3 आदमियों को लेके लैंड कस्टम हाउस के पास आए। ये भी कह दो कि X2 का पैगाम है, और सार्जेंट नाशाद से कहना कस्टम हाउस के पास से गुजरने वाली हर स्टेशन वैगन की तलाशी ले। इमरान कैदियों को ला रहा है, उसके साथ जूलिया भी है। तुम ज़बरदस्ती कैदियों पे कब्जा कर लेना। अगर इमरान लड़ने पे आमादा हो तो उसे अच्छी तरह से ठीक करना, ठीक है? ये जूलिया कौन है? रूशी ने पूछा। अरे, एक बीमार और बूढ़ी औरत है जो शायद रास्ते में मर जाए, समझी? फ़ोन नंबर फिर से लिखो और बस जल्दी करो। इमरान डिस्कनेक्ट करके बाहर आ गया था। जूलिया अगली सीट पे थी, स्टेशन वैगन चल पड़ी थी। और यहाँ ये सब कुछ यूं ही रहेगा? अरे जहन्नम में जाए, मैं तो सिर्फ कैप्टन फयाज को चोट देना चाहता था। नहीं, आप उन्हें बराह रास्त पुलिस के सुपुर्द नहीं कर सकते, ये सीक्रेट सर्विस वालों का केस है। होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। सीक्रेट सर्विस वालों को भी देख लिया मैंने, सब निकम्मे हैं। जूलिया कुछ न बोली। हकीकतन अगर इमरान वहाँ मौजूद ना होता तो पता नहीं वो लोग उसका क्या हश्र करते। क्या आप बहुत पहले से इन लोगों में रहे हैं? नहीं, ये आज ही की बात है। मैं रेस्टोरेंट से निकल के एक जगह छुप गया था, और वहाँ मुझे पहले ही इल्म तो था कि कुछ लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और बस मैं उनके पीछे था। जब तुम रेस्टोरेंट से बाहर निकली, मैंने तुम्हारा ताक़ुब किया था। मैं दरअसल तुम पर अपनी गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। तुम अपने फ्लैट पे गई और मैं बाहर इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तुम बाहर आओगी। इसके बाद मैं देखता कि मेरी गुफ्तगू तुम्हें कहाँ ले जाती है, लेकिन तुम्हारे बजाय तुम्हारे फ्लैट से 2 आदमी निकले जो एक बहुत बड़ा संदूक उठाए हुए थे। मैं समझ गया कि भैया तुम ही होगी उसमें। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या उसके पास बस इतने ही से आदमी रहे होंगे? नहीं, शायद 1.5 दर्जन तो इसी शहर में है। सुर्ख तहरीर के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वो 100% सुर्ख होती है, खुदा की पनाह। वो सब कुछ क़यामत है, एक दिन सारी ज़मीन पर फैल जाएगी। और क्या? जूलिया ऊँघ रही थी, वो मुतमईन थी, इसलिए उसे नींद आ गई थी। अचानक धचका लगने से उसकी आंख खुली। स्टेशन वैगन रुक गई थी। दफतन उसने सार्जेंट नाशाद की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, इमरान साहब चुपचाप उतर आइए वरना आपकी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। ज़रूर करो प्यारे, मैं इसे दिमाग की खिड़की कहूँगा। दूसरे लम्हे में रिवॉल्वर की नाल इमरान के सीने पे आ गई थी। दरवाज़ा खुला और इमरान को ज़बरदस्ती नीचे खींच लिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जूलिया चीखी। X2 का हुक्म है। सार्जेंट नाशाद स्टीयरिंग के सामने बैठता हुआ बोला। इमरान, रिवॉल्वर का रुख तुम्हारी तरफ है, पीछे हट जाओ, अपनी जगह से हरकत भी ना करना। इमरान नीचे से चीख कर बोला, जूलिया, तुम क़यामत के दिन खुदा के सामने गवाह रहना कि स्टेपलर को मैंने पकड़ा था, और कन्फ्यूशियस पर तो मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, जो दुनिया को नेकी का सबक दिया करता था। बस किस्सा हातिम ताई ठीक है, दरिया कर नेकी में डाल, अर न डाल कर नेकी कर। वो ऐसे ही कुछ बक रहा था। स्टेशन वैगन फराटे से आगे बढ़ गई थी। दानिश मंजिल के एक बड़े कमरे में सीक्रेट सर्विस के 8 अरकान मुअद्दिब बैठे थे और ट्रांसमीटर से X2 की भर्राई हुई आवाज़ मुंतशिर हो रही थी। वो हमेशा भर्राई हुई आवाज़ में बोलता था, इसलिए उसके मातहतों का ख्याल था कि वो अपनी असल आवाज़ को छुपाने के लिए हल्क के बल बोलता है। वो कह रहा था, डॉक्टर स्टेपलर वो रॉकेट चुरा के लाया था। उसने इंग्लैंड में उस साइंसदान को जहर दिया था जिसने उसको ईजाद किया था। वो रॉकेट कुछ इस किस्म का था कि फ़िज़ा में हर किस्म की उड़ान ले सकता था। उसके पिछले हिस्से से सुर्ख रंग की चमकदार गैस भी खारिज होती थी। रॉकेट दरअसल इसलिए बनाया गया था कि इसके ज़रिए चांद तक पहुंचने का तजुर्बा किया जाए, लेकिन डॉक्टर स्टेपलर की जहानत ने शैतानियत का लबादा ओढ़ लिया। वो उसे यहाँ उड़ा लाया और उसे दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा। वो रॉकेट को फ़िज़ा में इस तरह चक्कर देता कि सुर्ख रंग का धुआं तहरीर की शक्ल अख्तियार करे, लोग बदआवाज़ हो जाते और फिर आबादियों पे धुओं के गुब्बारे फेंक कर सचमुच क़यामत का मंजर पेश कर देता। और उसके गुर्गेज़ अफरा तफरी से फ़ायदा उठा के लोगों को लूटते फिरते थे, चूँकि वो गैस मास्क पहने हुए होते थे। उन्होंने सिर्फ इन 2 ही हमलों में करोड़ों की दौलत लूट ली थी।
डॉक्टर स्टेपलर जानता था कि ये बात छुपी ना रहेगी, लिहाजा उसने यहाँ आकर अपनी मौत का ढोंग रचाया। उसके गिरोह वालों ने एक ताबूत दफन कर दिया था और जाहिर है कि वो ताबूत खाली था और उसमें सिर्फ पत्थर थे। वॉल्टन दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड का एक इंस्पेक्टर था और उसी रॉकेट के चक्कर में यहाँ आया था। चूँकि वो रॉकेट तजुर्बाती दौर में था, इसलिए इंग्लैंड की हुकूमत चाहती थी कि इसकी शोहरत ना होने पाए, इसलिए वॉल्टन बहुत ही पोशीदा तौर पे यहाँ आया था और वो मुझसे मिल के बातचीत करना चाहता था। मैं इस सिलसिले में इमरान का शुक्रिया अदा ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। शायद शुक्रिया उस तक पहुंच ना पाए, लेकिन तुम आठों से वाकिफ़ है, लेकिन उसे मेरे वजूद का इल्म नहीं है और मैं यही चाहूँगा कि कभी ना हो। इसी में मेरे महकमे की बेहतरी है। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, पुलिस आ रही है, वो मुजरिमों को ले जाएगी। पुलिस वालों को तुम्हारे वजूद का इल्म ना होना चाहिए। ट्रांसमीटर बंद करके इमरान बुरी तरह खांसने लगा। इस तरह बोलते रहने की वजह से उसके हलक में खराशें पड़ गई थी। रूशी उसके करीब खड़ी उसे हैरत से देख रही थी। फिर उसने उसका दाहिना कान पकड़ के बुरी तरह से ऐंठा। अरे 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 अरे, इमरान उसका हाथ पकड़ के कहा, ये मुझे आज मालूम हुआ है। तो तुम इतने दिन से मुझे उल्लू बना रहे थे, मुझे तुमने बताया नहीं। अरे भाई, तुम भी किसकी बातों में आते हो? ये इमरान बोल रहा था, इमरान जिसके कौल फाल का कोई एतबार नहीं है। पिछली रात भी तुमने X2 का पैगाम देने के लिए कहा था, मुझे बताओ मुझे बताओ। रूशी बहुत गुस्से में लग रही थी। हाय हाय हाय, इमरान बौखला के पीछे हटा। बताता हूँ, सुनो। हाँ, मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर X2 हूँ। अपने मातहतों के सामने आना नहीं चाहता। वो कमबख्त मुझे चुटकियों में उड़ा देते हैं। मेरी सूरत ही ऐसी है, क्या करूँ? किसी पर मेरा रोब ही नहीं पड़ता। लोग राह चलते मेरे शाने पे हाथ रख के गुफ्तगू कर लेते हैं। अगर अपने चेहरे पे रोब पैदा करने की कोशिश करूं तो और ज़्यादा मज़हका खेज़ हो जाता हूं। टेलीफोन पे या ट्रांसमीटर पे X2 की आवाज़ सुन के वो लोग बुरी तरह कांपने लगते हैं। लेकिन इमरान की जो दुर्गत उन्होंने पिछली रात बनाई थी, वो मुझे अब तक याद है। ऐसी बेदर्दी से स्टेशन वैगन से खींच के ज़मीन पे फेंका कि इमरान के बजाय अगर कोई और होता ना तो उसकी हड्डियाँ पसलियाँ चूर हो गई होती। ये जूलिया कौन है? मर गई बेचारी, इमरान ने ठंडी सांस लेके कहा। उसका क्या गुस्सा है? रूशी ने पूछा। अरे भाई, वो बेचारी कम अज़ कम 95 साल की तो ज़रूर होगी। डॉक्टर स्टेपलर की नानी थी और उस कमबख्त ने उसे भी कैद कर रखा था क्योंकि वो उसकी फ़र्जी मौत के राज से वाकिफ़ थी। जूलिया, नाम तो बड़ा खूबसूरत है, रूशी फिर बोली। और क्या? इमरान सर हिला के बोला। मेरा दावा है कि जवानी में वो खुद भी बड़ी खूबसूरत रही होगी। हाँ, लो च्युइंगम खाओ। इमरान उसे चुपके से देखता हुआ बोला। रूशी दूसरी तरफ देख रही थी। शायद वो अब भी जूलिया के बारे में ही सोच रही थी। खत्म शुद्ध।